Hello students, in our previous video we had learned about the noun cases. It's four types: nominative case, objective case, vocative case and possessive case. Okay. Also we had learned about the some of the rules that has a possessive cases. So I had told you in our last video that you have to solve your question and answer of that lesson. It means page number 5 and 6. So today I hope you have solved all the question and answer, and let us we will learn next point of our first lesson. Today we are going to learn use of the possessive case. You can see here on the textbook page number 6. Use of the possessive case. So let us learn. The possessive case is restricted to the noun shown below. अभी इन यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए जाते हैं उस सेंटेंस में वो जो पॉजेसिव केस वाले हमारे नाउन्स जो होते हैं वो नाउन केस का यूज़ किस तरह से उस सेंटेंस में किया जाता है वो हम इस पॉइंट्स में देखेंगे. ओके, सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट यूज ऑफ द पॉजेसिव केस. Nouns denoting persons. Nouns denoting persons. It means you can see the example here. Anu's book. Second, a girl's face. It means here we use nouns as a possessive case. It means we use the apostrophe s for its nouns place. Okay, so we can say nouns denoting persons. It means Anu's book and girl's face. Next, you can see second line, second use of the possessive case, that has nouns denoting living things like animals, birds, insects, etc. Okay, it means अभी इस सेंटेंस में आपको लिविंग थिंग्स वाले जो नाउन्स आएंगे, इट मीन्स लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये जो सारी हमारे नेम्स आते हैं, एनिमल्स के नेम, बर्ड्स के नेम, वो सारे नाउन्स में आते हैं और वो नाउन्स भी हम उन नाउन्स को भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. इट मीन्स वी कैन सी पॉजेसिव केसेस इन दोज सेंटेंसेस. ओके, so let us learn. For example, a monkey's tail. Monkeys. Here we can see the animal's name monkey and it has a apostrophe s. Monkey's tail. Next, a lion's paw. Next, a bird's feathers. It means monkeys, lion, bird. These are the living things, and these all living things has a apostrophe s. It means we see here possessive case of that living things. Okay. So let us see the third use. Nouns denoting personified things. It means किसी भी व्यक्ति का जो हमारा पर्सोनिफाई होता है उनको शो ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं. इट मीन्स फॉर एग्जांपल इंडियाज़ हीरोज़. इंडियाज़ हीरोज़. नेचर्स लॉ. फॉर्च्यून स्माइल. देन डेथ्स डे. In this way we can see some of the nouns denoting personified. Next, an inanimate thing is said to be personified when it has ascribed to itself the attributes of a person. What is mean by it? It means जो हमारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इट मीन्स लाइफलेस थिंग्स. Lifeless things, it means non-living things, it has also personified when it has explained some of the qualities of that a person. Okay, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है बट उनके भी कुछ ऐसे पर्सोनिफिकेशंस होते हैं जो हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं किसी भी सेंटेंस में. तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव केस का, इट मीन्स एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम करते हैं. ओके, लेट अस सी द फोर्थ यूज नाउ. Nouns denoting time or space or weight or value. अभी आपको जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसमें भी हम नाउन्स किस में देखेंगे, जो नाउन्स हमें टाइम शो करते हैं, स्पेस शो करते हैं, वेट और वैल्यू शो ऑफ करते हैं, वो वाले नाउन्स को भी हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज़ किया करते हैं. सो लेट अस सी द टाइम फर्स्ट. अ डेज जर्नी. अ डेज जर्नी, यू कैन सी हियर डे को हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस लगाया है. ओके, अ डेज जर्नी. A month's holiday. Months, it also shows the time. 3 weeks leave. 3 weeks leave. Here also we can see the apostrophe and weeks shows the time. A year's absence. In 1 hour's time. It means here we can see a days, a months, a weeks, years and hours. These all words show off the time, so it has also
we use the apostrophe yes. It means we see in those sentences it has a possessive cases. Okay, next you can see here space. A boat's length, बोट की जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ बताने के लिए हम यहाँ पे apostrophe yes यूज़ करते हैं. A boat's length, a hair's breadth, a razor's edge, a stone's throw, a needle's point. Okay, in this way here we can see, we can understand, we can explain about that all the things spaces. So it has also, we use the apostrophe yes. Next, see here weight. A pound's weight, a ton's weight. Okay, ton's weight, it means weight means क्या, जो हम किसी भी चीज़ को जब हम मापते हैं तो वो वाला जो वर्ड होता है उसको भी हम apostrophe yes यूज़ करते हैं. Let us see next and last value. Value means a shilling's worth, 5 pounds worth. किसी भी चीज़ की वैल्यू बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स को भी हम पॉजेसिव केसेस में यूज़ करते हैं. तो आपने इस पेज पे 4 जो रूल्स देखे हैं वो रूल्स हमारे क्या बताते हैं कि पॉजेसिव केसेस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट है नाउन्स डिनोटिंग पर्सन्स. पर्सन्स के लिए जो भी नाउन्स पर्सन एज आएंगे उसको यूज़ करते हैं. देन लिविंग थिंग्स जो हमारे होते हैं उसके लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. देन सम ऑफ दैट नाउन्स दैट डिनोटिंग personifieds and as well as a inanimate, it means non-living things also it has a personified, and this called all the possessive cases. एंड फोर्थ है टाइम स्पेस वेट एंड वैल्यू. इन वर्ड्स को भी हम जब भी शो ऑफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम भी उस वर्ड्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी यस इट मीन्स पॉजेसिव केस में यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. हियर यू हैव गिवन पॉइंट टू रिमेंबर. द पॉजेसिव केस शुड बी यूज्ड टू डिनोट पोजिशन और ओनरशिप. ये जो पॉजेसिव केसेस के जो वर्ड्स होते हैं वो पॉजेसिव केस किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? टू डिनोट, टू एक्सप्लेन इट्स पोजिशन, इट्स ओनरशिप. मतलब उस वर्ड्स का या फिर उस नाउन्स का अधिकार दिखाने के लिए उस पॉजेसिव केस का इट मीन्स नाउन का यूज़ किया जाता है. किसी भी सेंटेंस में नाउन को अगर पॉजेसिव केसेस में हम देखते हैं तो उसमें हम उस सेंटेंस में उसका ओनरशिप, उस नाउन्स का अधिकार जो होता है वो हम उस सेंटेंस में देखते हैं. ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पॉजेसिव केस. ओके, thus it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat. Okay, even though no doubt arises so as to the meaning. यहाँ पे आपको पता है कि हम कभी भी the defeat of the enemies ऐसे कहना आसान समझते हैं, अच्छा समझते हैं, than the enemy's defeat. इस तरह से बोलने से अच्छा है ये, मतलब the defeat of the enemy more than the enemy's defeat. यहाँ पे आपको मतलब दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही होता है. नो डाउट्स अराइजेस एज टू द मीनिंग. मीनिंग तो सेम ही आएगा पर उसको जो बोला जाता है वो बोलना हमारा इससे यही बेटर रहता है. ओके, इट मीन्स वी हैड लर्न नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजेसिव केस एंड इट हाउ दोज एक्सपोजिशन in their sentence and most of the uses of that possessive case. Okay, so let us see here. You have given some of the text yourself test. So let us see first question. Which of the following phrases are correct? In our last period we had learned about the some of the phrases. इट मीन्स अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फ्रेज दिए हैं तो इसमें से कौन से फ्रेज करेक्ट है उनको आपको करेक्ट मार्किंग करना है और जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग मार्किंग करना है. सो लुक एट हियर, आई हैव गिवन फॉर यू. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हियर यू हैव गिवन सम ऑफ द सेंटेंसेस. इट मीन्स 10 sentences you have given here on the page number 7. These all sentences are incorrect. ओके, तो इस सेंटेंस को क्या है कि इनकरेक्टली सेंटेंसेस लिखे हैं तो इसको आपको करेक्ट करना है. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट, दिस टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन. दिस इज अवर इनकरेक्ट सेंटेंस. सो what do you do now? करेक्ट दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो इस इनकरेक्ट सेंटेंस को हमें करेक्ट किस तरह से बनाना है? लुक एट हियर, द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन. इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस बनता है इस फर्स्ट सेंटेंस का. इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे सेंटेंस को देखना है और इसका करेक्ट सेंटेंस किस तरह से बनेगा वो आपको फाइंड आउट करके
क्लियर करना है और सारे सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगा के ये 10 सेंटेंस आपको पूरे करेक्ट बनाने हैं, लिखने हैं. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सो लेट अस वी विल लर्न tomorrow.